bit general. ठीक है. So I'll just so I'll make a थोड़ा सा इसको fun class करेंगे. ठीक है. Physics. So what is basically I'll just say I'll just ये class में कहूँगा what's the relationship between physics and mathematics, है कुछ relation. So I'll just हाँ ठीक है इस पर दे we'll give what's the relationship between physics and mathematics. Mathematics is applied physics. बेशक है. Anybody else? आप बताओ कुछ जो भी पढ़ा होगा. Physics is practical and mathematics is Physics is practical. theory. Mathematics is very much anything. Huh? Anything. या आपने सुना होगी your earlier classes, mathematics is the language of physics. तो वो सुनो. Yes, sir. So these are all sorts of what I should say. या आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स इज टूल, फिजिक्स इज क्या, मैथमेटिक्स टूल, फिजिक्स मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ऐसा करके है ना. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैथमेटिक्स इज टूल फॉर फिजिक्स, व्हाई शुड वी गो टू मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स अपनी एसेंस में क्या है, व्हाट इज दैट in mathematics which is not physics, and what is that in physics which is not mathematics. There can be something which may intersect both physics और math के दरमियान, पर mathematics fundamentally क्या चीज़ है जो physics नहीं है, and vice versa. बता सकते हो? Why it's like okay, चीज़ आपको हाँ. बेसिकली जो मैथमेटिक्स है, बिफोर वी आर गोइंग टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हम उससे पहले जाएंगे व्हाट इज साइंस, है ना. तो हियर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन. व्हेन यू से साइंस, साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन, जो आप पढ़ते हैं. फिर उसकी मुख्तलिफ शाखें हैं ना. There is physics, there is chemistry, there is biology, there is... But the way mathematics is defined, it's not defined that way. How is mathematics defined? So mathematics हम normally कहते हैं, it's science, or it may not be science. So when I say it may not be science, it means the foundations of mathematics do not necessarily follow the methodology of experimentation, observation and verification. Mathematics जो है, it's also depend upon pure thought या logic. ठीक है. So mathematics when it's applied to the realities of the concrete physical world, so हम कहते हैं it's mathematical sciences. Use of mathematics in sciences. But mathematics or the logic जो mathematics का अपना है, it may not, or it may sometimes derive inspiration from the problems of physics or problems of the real world, but it has its own logic or it has its own foundations which need not necessarily depend upon the rules of the external world. So in mathematics we create rules by our own reasoning. ठीक है, रूल्स ऑफ रीजनिंग बाय आवर ओन लॉजिक विच मे और मे नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. व्हेन दोज रूल्स ऑफ रीजनिंग और लॉजिक
somehow correlate with what is happening out there, उसको हम साइंस भी कहेंगे, ठीक है. और फिजिसिस्ट में बोरो थिंग्स ऑफ मैथमेटिशियंस टू एक्सप्लेन वर्ल्ड थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है. तो इसमें हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स को आप थोड़ा खंगालो. जैसे कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जो न्यूटन की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी थ्री बॉडी फिजिक्स की, ठीक है, सन मून एंड अर्थ. तो हिज प्रॉब्लम वाज जो अर्थ है ना, अर्थ व्हेन ही कैलकुलेटेड, तो उसका प्रॉब्लम आ गया बी, उसको कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, एट इज सेंटर पे मास होगा. तो उसको 20 साल लगे कि उसने तो पहले किया प्रूव, 20 साल लगे तो ये कैसे प्रूव करेंगे. सो ही इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस. सो समटाइम्स a technique or a method which has been invented by mathematician already, it comes handy, है ना. अब इसमें जो इसमें फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वार्डरोब, है ना. वार्ड, आपको कोई चीज़ ज़रूरत है, फेरन है, घर पे जाओगे तो फेरन, बनियान, ये कांगड़ी, तो आपके ऊपर ठंड लगी तो सडनली आप देखोगे वहाँ है जैकेट और फेरन है, तो यू एंड गो सिट इट देयर. So there is always something. So physicist may come and he sees some mathematical tool which has been invented by a mathematician. It may be suitable for his कोई algebra, कोई calculus, कोई geometry, and he will use it. Or sometimes he has to invent it for the needs of the particular physical world in consideration. Physics की कोई particular problem, nature की कोई problem होगी, वो फिजिक्स की हो या फिजिक्स. मैथमेटिकल मेथड्स आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिकल बायोलॉजी है, बहुत बहुत सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. और इस तरह फिजिक्स के भी डिफरेंट ब्रांच है ना. सो द यूज ऑफ द रोल ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड यू शुड बी एबल टू, इफ़ यू आर गोइंग टू बी फिजिक्स स्टूडेंट्स, तो आपको, जैसे कई इंटीग्रल फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं ना, अक्सर डरते हैं, इंटीग्रल आता है तो डर जाते हैं, है ना, ये कहाँ से आ गया बेसिकली. सो द पॉइंट इज़ कि वहाँ आपको नहीं पता होता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्या है. सो इधर यू कैन यूज़ फिजिक्स वाले, यू इन द जो मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब आया, इंटीग्रल आया, डिफरेंशियल आया, नॉर्मली कैलकुलस यूज़ हो जाता है, ठीक है, इन फिजिक्स में. डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, ठीक है. ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ होते हैं स्टैटिस्टिक्स में. तो नॉर्मली फिजिक्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई, ये कहाँ से आ गया, ठीक है. सो पहले डरना नहीं है ना, जो मैथमेटिक्स का आइडिया है, सो इट मे हैव इट्स ओन वैल्यू बट इट्स यूज्ड इन प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स. इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड, आप उनसे डरो नहीं इंटीग्रल से, यू कैन गो टू द थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स. उसकी थ्योरी कैलकुलस में होगी या डिस्ट्रीब्यूशंस में होगी, यू कैन स्टडी दैट थिंग ऑन देयर ओन. दैट्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन इट्स ओन डोमेन. और अगर आपको सिर्फ ये मकसद है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कोई फिजिकल प्रॉब्लम, हियर आई एम गोइंग टू यूज एज ए टूल. बोथ मेथडोलॉजीज आर रेलिवेंट. यू शुड नॉट फियर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आई, ठीक है. वेरेवर यू फाइंड मैथमेटिक्स यू शुड सी इट. चलो इसकी अपनी एक थ्योरी है, इसका अपनी एक लॉजिक है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड डिग डीपर. उसका लॉजिक देखो, मैथमेटिशियन ने एक्शियम से कहाँ से लाया, डिराइव कैसे किया, फिर कैसे किया, फिर कैसे किया, एंड फिजिक्स के लॉजिक में उसको कहाँ वेयर इट्स यूजफुल, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे है, मे बी, चलो आपको अभी समझ नहीं आया, अगर नहीं आएगा मगर फ्यूचर में आप जाना, कभी नेट पे जाना, एक ऐसे है द अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स इन नेचुरल साइंसेस. ये बिगिनर का एक ऐसे, आप नेट पे जाना, ये मिलेगा आपको, उसको आप थोड़ा पढ़ो, 2, 4, 5 पेज, जितना समझ आए उतना सब कुछ समझ आएगा. फर्स्ट
ठीक है। तो क्योंकि आज जो हम फिज़िक्स की सारी थेरीज है ना, द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड, द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी मच, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, या आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो, ठीक है, ऑल ऑफ देम इज रिक्वायर्ड। द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, कश्मीरी या उर्दू में है ना, चोली दामन का साथ, है ना, दे वर्क हैंड इन हैंड। समटाइम्स मैथमेटिक्स इज ahead, sometimes physics lags, sometimes physics की कोई explanation है मगर उसकी फिर मैथमेटिक्स, so इनका एक symbiotic understanding of physics and mathematics है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो ठीक।